Hello and welcome to this session of data file handling using Python part 3. Far we have learned the read function. Now we'll cover some basic text operations which are related to board examination. We'll start from the character reading, then word reading, and then line reading. These are the three reading which generally comes in the board examination. So let us understand the character reading, the cases where we can use, like to count the number of vowels in the file, to count how many uppercase, lowercase, digit or symbol in the file, to print by replacing any character with another character, or any other case where individual character of file needs to process. Here the main function will be read. Now word reading, let us understand the scenario. To search and count any word occurrence, to search a word starting from uppercase or lowercase and count it, to search a word of any particular length, or any other case where the processing of word is required. The main functions are read and line, split, and wait. Next is line reading, to count the number of lines, to count the number of lines beginning from any letter or word, or any other case where the processing of line is required. Here the main function will be the read line. Okay, so let us do the practicals. So before I create a program, I'll show you a file which we are going to read. This file is something like this, contains some random content, and we are going to read this file. So we'll start from the character by character. So we'll create first program where we'll find the number of uppercase characters present in the file. So let us begin. So first we'll open the file equals to open, and the name of file poem.txt. Now because we have to read the entire content, the function will be the read function. So we'll read contents equals to file.read. The entire content will comes to the contents. Because we have to count something, so we will take one count variable, count equals to 0. So now we'll iterate the contents. हम एक contents के ऊपर loop चलाएंगे for ch in contents. तो contents से एक एक character ch में आएगा, और ch डॉट इज अपर, हम यहाँ पर एक कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ch में जो कैरेक्टर आया क्या वो अपर है. अगर अपर है तो उसे काउंट कर लो, और फिर लास्ट में उसे प्रिंट करा देंगे टोटल अपर केस कैरेक्टर्स आर काउंट. सो इस तरीके से कंटेंट्स से सारा डेटा एक एक करके ch में जाएगा और उसको काउंट करेंगे अपर केस से मैच करा करके. इसको सेव कर लेते हैं. लोकेशन नहीं दिया है तो सेम फोल्डर में ही सब कुछ रखेंगे. जहाँ पर poem.txt है वहीं पर इस फाइल को सेव करेंगे. सेव कर लिया. अब चलिए इसको रन करते हैं. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट आ रहा है टोटल अपर केस कैरेक्टर्स आर 9. सो चलिए हम एक बार देख लेते हैं, एक्चुअली वेरीफाई कर लेते हैं. ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 and the last one is capital L. So total 9 characters are in upper case. The program is reading correctly. So total upper case characters are 9. So एक बार फिर से देख लेते हैं. सबसे पहले हमने रीड किया तो सारा डेटा उठकर कंटेंट्स में आ गया. फिर हमने एक लूप चला दिया जो कंटेंट से एक एक कैरेक्टर उठा करके ch में देगा. फिर हम उस ch को इज अपर से मैच करा लेंगे, क्या वो अपर है. अगर अपर है तो काउंट को बढ़ाते जाएंगे. तो जब जब अपर होगा काउंट बढ़ता जाएगा तो टोटल हमें मिल जाएगा. चलिए हम लोग अब वर्ड बाय वर्ड को प्रोग्राम देखते हैं, जहाँ पर हम लोग वर्ड रीडिंग का प्रोग्राम लिखेंगे. सबसे पहले हम करते हैं फाइल इक्वल्स टू ओपन poem.txt. यहाँ पर हम एक वर्ड है कोरोना, उस फाइल में कोरोना वर्ड को सर्च करेंगे. कोरोना वर्ड फाइल में कितनी बार है, तो सेम वही प्रोसेस है. काउंट इक्वल्स टू 0 काउंट करना है. अब चूँकि हमें पीछे में बताया था आपको कि जब वर्ड बाय वर्ड करना होगा तो हम दो फंक्शन यूज़ करेंगे, एक तो रीड लाइन और एक हमारा स्प्लिट. तो रीड लाइन की जगह पर हम यहाँ पर एक सिंपल फॉर का लूप भी चला सकते हैं जो लाइन बाय लाइन ऑटोमेटिकली रीड करता है. प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ मैं. तो हमने एक लूप चला दिया फॉर लाइन इन फाइल. तो ऑब्वियसली ये लूप क्या करेगा, फाइल से एक एक लाइन उठा करके लाइन वेरिएबल में देगा. तो पूरी लाइन मिल गई.
अब पूरी लाइन में को हमें क्या करना है, वर्ड्स में तोड़ना है। तो हमने लिख दिया वर्ड्स इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट। इसके बाद हमने इसको जो हमारे जो स्प्लिट करने के बाद जो लिस्ट बनी है वर्ड्स, उसके ऊपर एक लूप चलाया जो लिस्ट से एक एक वर्ड देगा। अब हम हर एक वर्ड को लोअर करके कोरोना से मैच कराते हैं। लोअर इसलिए कर दिया ताकि फाइल में किसी भी फॉर्म में रहेगा तो स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको कोरोना से मैच कराएंगे तो दोनों केस मैच करेगा। फिर उसको काउंट कर लेंगे और लास्ट में उसको प्रिंट के थ्रू उसको हम प्रिंट करा देंगे कि कोरोना ऑकर्स नंबर ऑफ टाइम्स जो भी है उसको हम प्रिंट करा लेंगे। आइए इसको रन करते हैं। देखिए आ गया कोरोना ऑकर्स 2 टाइम्स इन फाइल। अब ये ऊपर कुछ कंटेंट आ रहा है। हाँ, यहाँ पर हमने प्रिंट वर्ड्स करा दिया था जिसकी वजह से जो वर्ड्स में लिस्ट आ रही है वो भी उसमें वो प्रिंट हो रहा है। अब रन करते हैं। अब सही आ गया कोरोना ऑकर्स 2 टाइम्स इन फाइल। तो ये एक वर्ड रीडिंग का प्रोग्राम है जिसमें हमने वर्ड्स को रीड किया। एक ही प्रोग्राम से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जैसे ये वर्ड्स को रीड किया है तो इसी में हमारी हमको स्मॉल वर्ड सर्च करना है तो इज अपर लगा सकते हैं, ठीक है, इज लोअर। तो इस तरीके से कोई भी जो हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े थे वो सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वर्ड्स में कर रहे हैं वैसे ही हम कैरेक्टर्स वाले में भी प्रोग्राम में भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक, कोई पर्टिकुलर जो भी वर्ड आपको सर्च करना उस वर्ड्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन करने आप करा सकते हैं। तो आइए हम उस पर कैरेक्टर वाली फाइल में भी चलते हैं और उसमें भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो ये हमारी कैरेक्टर रीडिंग की फाइल थी जहाँ पर हमने लिखा था इज अपर। ओके, सो यहाँ पर भी आप अगर ये तो अपर चेक कर रहा है, आपको लोअर चेक करना हो तो लोअर का फंक्शन लगा दीजिए। डिजिट चेक करना हो तो डिजिट का फंक्शन लगा दीजिए, इस डिजिट। और अगर आपको ये चेक करना हो कि अल्फ़ाबेट है या नहीं है तो आप नॉट लगा कर इस अल्फ़ा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस जो स्ट्रिंग के हैं वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आगे आपको वीडियो के बाद आपको कुछ केसेस दूंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पर एक और सिनेरियो समझ लेते हैं। जैसे आपको वर्ड चेक करना और वर्ड कोई पर्टिकुलर लेटर से शुरू हो रहा हो तो हमें तो पता है कि हमने लिस्ट पे लूप चलाया तो एक एक वर्ड हमें मिल रहा है, तो जो वर्ड मिल रहा है वो भी एक स्ट्रिंग ही है। तो हम चाहें तो उस स्ट्रिंग के 0 पोजीशन को मैच करा लेंगे तो हमें स्टार्टिंग कैरेक्टर पता चल जाएगा कि कोई वर्ड इससे शुरू हो रहा है। ठीक है, अब लाइन का प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम इसमें लाइन रीड करेंगे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, पहले फाइल ओपन करेंगे। फाइल इक्वल्स टू ओपन, अपनी फाइल का नाम poem.txt। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम उन लाइनों को प्रिंट कराएंगे जिन लाइन का पहला लेटर एस से शुरू होता है। तो वही सबसे पहले अगर हमें काउंट भी करना है तो हम एक काउंट ले लेंगे 0 काउंट और फिर वही लाइन का लूप चला देंगे फॉर लाइन इन एल, जो भी आपका फाइल है फाइल के ऊपर लूप चला देंगे फॉर लाइन इन फाइल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 लाइनें ऐसी हैं जो एस से शुरू हो रही हैं। ये 2 लाइनें हैं जो एस से शुरू होती हैं। ठीक है, तो सब फाइल खोल लिया। फाइल खोलने के बाद काउंट ले लेंगे 0 और फिर लूप चला देंगे फॉर का जो लाइन बाय लाइन रीड करेगा। ये बहुत आसान है क्योंकि हमें पूरी लाइन पे काम करना, तो हमें यहाँ पर स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे लाइन ऑफ 0 को मैच करा सकते हैं। इफ़ लाइन ऑफ 0 इक्वल्स टू s, दैट मीन्स उस लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर को हम लोअर में कन्वर्ट किया और उसको s से मैच करा लिया। और अगर मैच होता है तो उसको उस लाइन पूरी लाइन को प्रिंट करोगे और फिर काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। तो इस तरीके से लूप चलता रहेगा। एक एक लाइन पढ़ेंगे, हर लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर को s से मैच कराएंगे। अगर वो मैच करता है तो उसे प्रिंट करेंगे और काउंट करेंगे। और लूप के बाहर हम क्या करेंगे, उस फाइल को उस जो हमने काउंट किया उसको प्रिंट करा लेंगे। कितनी लाइनें ऐसी हैं जो s से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, रन करिए इसको।
सो हम देख सकते हैं आउटपुट में वो दोनों लाइनें आ गई जो एस से शुरू होती थी, और लास्ट में हमको टोटल भी बता रहा है कि टोटल कितनी लाइनें ऐसी हैं जो एस से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन का प्रोग्राम है। अब इसी में ही मान लीजिए आपको ये पता करना कि कितनी लाइनें ऐसी हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्ड से शुरू होती है, तो आप सिंपली फिर क्या करना पड़ेगा, अब आपको वर्ड की बात आ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आप उसको स्प्लिट कर लेंगे और स्प्लिट करने के बाद वर्ड को मैच करा लेंगे, फर्स्ट वर्ड को मैच करा लीजिएगा उसको, तो आपको पता चल जाएगा कि पहला वर्ड किससे शुरू हो रहा है। सो अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ प्रोग्राम्स आपके लिए है जो आपको करना, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के इन प्रोग्राम्स को ट्राई करिए। ये 3 प्रोग्राम मैंने दिए हुए हैं, कैरेक्टर के दिए हुए हैं, वर्ड के दिए हुए हैं और लाइन रीडिंग के दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जैसे कि आपको एक फंक्शन लिखना है जो letter.txt को रीड करेगा और काउंट करेगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं और उसमें सिंबल्स कितने हैं। ठीक है, जैसे फाइल का कंटेंट अगर admin@ ये लिखा हुआ है तो टोटल जितने भी डिजिट्स है वो बता देगा और हमें सिंबल्स बता देगा। दूसरा हमारे पास words.txt वाली फाइल को रीड करना है और ऐसे वर्ड्स को प्रिंट करना है जिनकी लेंथ 4 है और टोटल कितने वर्ड्स है वो भी आपको बताना है। ठीक, जैसे कंटेंट्स अगर ये लिखा हुआ है तो आपको पता चलना चाहिए कि ये 3 वर्ड है, बोथ, दैट, लुक, और टोटल कितने वर्ड्स हैं 3, वो भी आना चाहिए। फिर आपको india.txt को रीड करना है एंड डिस्प्ले एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड इंडिया। तो जैसे इंडिया है तो यहाँ पर आपको वो कितनी लाइंस इंडिया से स्टार्ट होती हैं वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये 3 वो सिनेरियोज थे, कैरेक्टर रीडिंग, वर्ड रीडिंग एंड लाइन रीडिंग, जिसके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम राइटिंग के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा बाइनरी का इंट्रोडक्शन देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।